دیگار سید الانبیاء گئے، سید الانبیاء گئے، رات نے پایا زلفوں کا صدقہ، رخ پر صبح نثار، رات نے پایا زلفوں کا صدقہ، دیکھیے رات مچلنے لگی، رخ پر صبح نثار، نور کے طالب شمس و قمر ہے، زیر قدم ہے بہار، زیر قدم ہے بہار، شوخیوں سادگی دلکشو دلبری، دلکشو دلبری، شوخیوں سادگی کر لیے سب نے سولہ سنگار، سید الانبیاء، سبحان اللہ سبحان اللہ، سید الانبیاء، حور و ملائک آج زمین پر کرتی ہے چشم براہی، حور و ملائک آج زمین پر کرتے ہیں چشم براہی، کفر و ضلالت اور گمراہی آئی سب کی تباہی، آئی سب کی تباہی، سید الانبیاء اور قبر میں پہنچا سیدنا و شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل آپ نے بیان سنا معراج مصطفیٰ کا، جیسا کہ آپ ابھی بھی سن چکے ہیں کہ سارے نبی کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر آئے، کچھ نہ کچھ کمالات لے کر آئے، کچھ نہ کچھ اختیار لے کر آئے، کچھ نہ کچھ پاور لے کر آئے، لیکن قربان جاؤ ہمارے آقا پر کہ وہ آئے تو کوئی ایک معجزہ لے کر نہیں آئے، دو معجزے لے کر نہیں آئے، عجیب بلکہ سر انور سے لے کر قدم مبارک تک معجزہ ہی معجزہ بن کر آئے، معجزہ ہی معجزہ بن کر آئے۔ نبی چلیں تو معجزہ، بیٹھیں تو معجزہ، اٹھیں تو معجزہ، ارے لعاب دہن فرمائیں تو معجزہ، پسینہ اس کی بیٹی کے پیشانی پہ ڈال دیا جائے پشتے مہکنے لگے، معجزہ، نالین مبارک معجزہ۔ اور کل سنا آپ نے کہ سب سے بڑا معجزہ معراج مصطفیٰ۔ آؤ معراج سے پوچھیں، اے معراج تو کیا ہے؟ معراج میں کتنے حرف ہوتے ہیں؟ کون کون سے حرف ہوتے ہیں؟ میم، عین، رے، الف، جیم۔ آؤ پوچھے معراج سے، اے معراج کس کو معراج ہوئی؟ کس کو معراج ہوئی؟ تو معراج کا میم کہے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ پوچھو اے معراج کہاں ہوئی معراج؟ زمین پہ ہوئی، کہاں ہوئی؟ معراج کا عین بولے گا ارے نادان، زمین پہ کون معراج ہوئی؟ عرش پہ معراج ہوئی۔ معراج کا عین بول رہا ہے عرش پہ معراج ہوئی۔ پوچھو اے معراج یہ بتاؤ رات میں ہوئی کہ دن میں ہوئی؟ تو رے نے آگے بڑھ کر جواب دیا کیا رات میں ہوئی معراج۔ اے معراج خود مصطفیٰ نے معراج میں کس کا دیدار کیا؟ تو الف پکار اٹھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ ایک اور کہ معراج یہ بتا کہ سرکار کو صرف تصور میں معراج ہوئی، روحانی معراج ہوئی یا جسمانی معراج ہوئی؟ تو جیم پکارے بھٹے گارے نادان، نورانی معراج، روحانی معراج تو روز ہوا کرتی تھی، جسمانی معراج ہوئی ہے کہ نہیں؟ معراج نے جواب دے دیا، معراج کے ہر حرف نے جواب دے دیا۔ معراج سرکار سو رہے تھے، اٹھائے گئے، حضرت جبریل نے اپنی پیشانی تلوائے مصطفیٰ سے رگڑی، سرکار عرش اعظم پر پہنچے۔ لوگ اعتراض کرنے لگتے ہیں کہ یہ بتائیے اتنی سی دیر میں سرکار اوپر چلے گئے، خدا کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ تو مجھے ابھی بھی یاد ہے جب میں 8ویں جماعت میں پڑھ رہا تھا
تو سائنس کی کتاب میں نے ایک چیز پڑھی تھی کہ سورج کی روشنی تقریباً 8.5 منٹ پہ زمین پہ آ جاتی ہے. سورج کی روشنی 8.5 منٹ میں آسمان سے زمین پہ آ جاتی ہے. یہ روشنی عام روشنی کا کمال ہے. آپ نے برق دیکھی ہوگی, برق اس روشنی سے 70 گنا زیادہ پاورفل ہوتی ہے اور تیزی سے چلا کرتی ہے. اور برق سے 70 گنا زیادہ کیا ہوتی ہے؟ براق ہوتی ہے. براق یہ برق سے 70 کلومیٹر 70,000 کلومیٹر تیز چلتی ہے. اور براق سے بھی زیادہ تیز سرکار کی رفرف 70,000 گنا. ارے مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ یہ سورج کی روشنی ہے جو 8.5 منٹ لگاتی ہے زمین پر آتے آتے, یہ عام نور ہے. ارے جو نور والا نور ہو, جس کے صدقے میں سب کو نور ملا ہو, وہ چاہے تو ایک آن میں خدا کا دیدار کر کے آ سکتا ہے. پریشان مت ہو, ثبوت چاہیے تو آؤ غوث اعظم کی بارگاہ میں چلے, آؤ غوث اعظم کی بارگاہ میں چلے. قسم خدا کی غوث اعظم سرکار کے نقش قدم پر ہے تو ایسے ایسے سوالوں کو غوث پاک نے حل کر دیا. لوگوں نے اعتراض کیا کہ نبی نے مردہ نہیں جلایا. غوث پاک کہتے ہیں چل لے چل, ایک ٹھوکر ماری, قبر کے مردے کو زندہ کر دیا. بتا دیا کہ دیکھ میں نبی نہیں ہوں, غلام نبی ہوں. میرا یہ کمال ہے کہ ٹھوکر مارتا ہوں تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے. ارے جب نبی کے غلاموں کے غلام کا یہ عالم ہے تو بادشاہوں کے بادشاہوں کا عالم کیا ہوگا. جب مردہ زندہ کرنے کی بات آئی تو غوث اعظم نے جلا دیا. جب مدینے میں رہ کے ہر جگہ موجود ہونے کی بات آئی تو غوث اعظم خانقاہ قادریہ میں ہے. کہو تو آپ پر سبحان اللہ ایک مرتبہ اور زور سے جھوم کر بولو بھائی, جنت میں پلاٹ الاٹ ہو جائے گا آپ کو. سبحان اللہ. وضو کر رہے ہیں, خانقاہ قادری میں ہے, دارالعلوم میں ہے. ایک مرید آیا, حضور رمضان کا دن ہے, آج افطار اس غریب کے ہاں کیجئے گا. غوث پاک نے منظور کر لی. دوسرا آیا, سرکار اس ناچیز کو مت بھولی, آج افطار اس کے ہاں کر لیجئے گا. غوث اعظم نے کہا منظور. تیسرا آیا, کہا منظور. چوتھا آیا, کہا منظور. 70 مرید آئے. کتنے؟ پیچھے والے بولے 70 مرید آئے. غوث اعظم نے انکار نہیں کیا, کہا منظور. اب صبح ہوتی ہے, دوسرا دن ہوتا ہے. ایک مرید کہتا ہے میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ غوث اعظم ہمارے یہاں افطار کو آئے تھے. کہا تم جھوٹ بولتے ہو, کل تو غوث پاک نے میرے یہاں افطار کیا تھا. تیسرا سن رہا تھا, کہا تم دونوں جھوٹ بول رہے ہو, غوث پاک تو میرے یہاں آئے تھے. چوتھا کہنے لگا نہیں غلط, غوث پاک تو میرے یہاں میرے ساتھ بیٹھ کے افطار کیا تھا. سارے لوگ جمع ہو گئے. کہا چلو غوث پاک سے پوچھ لے کس کے یہاں افطار کیا تھا. طالب علم مدرسے کے ٹہل رہے تھے, جب دیکھا اتنے لوگ آئے, کہا کیا بات ہے. کہا ہم لوگ یہ پوچھنے آئے ہیں کہ کل غوث پاک نے اس کے یہاں افطار کیا تھا کہ میرے یہاں افطار کیا تھا کہ اس کے یہاں افطار کیا تھا. کہا تم سب لوگ جھوٹ بول رہے ہیں, ارے کل تو غوث اعظم نے مدرسے میں افطار کیا تھا. بارگاہ غوثیت میں پہنچے, ہاتھ جوڑ کر عرض کیا, غوث اعظم وضو فرما رہے ہیں, وضو فرما رہے ہیں. کہا حضور کل آپ کیا ہمارے یہاں افطار میں آئے تھے نا. کہا ہاں تمہارے یہاں آئے تھے. دوسرا کہتا سرکار آپ ہمارے یہاں آئے تھے. کہا ہاں تمہارے یہاں بھی آئے تھے. کہا سرکار ہمارے یہاں. کہا تمہارے یہاں بھی. طالب علم کہنے لگے ہمارے یہاں. کہہ رہے ہاں تمہارے ساتھ افطار کیا تھا. کہا سرکار یہ ماجرا کیا ہے, آپ ایک پل میں اس کے پاس بھی ہے, اس کے پاس بھی ہے, اس کے پاس بھی ہے, دارالعلوم میں ہے. غوث پاک کہتے ہیں دیکھنا چاہتا ہے, دیکھنا چاہتا ہے. وضو کر رہے تھے, چلو میں پانی لیا, پیڑ پر پانی مارا. کہتے ہیں دیکھ تو مریدیوں نے دیکھا کہ درخت کے ہر ہر پتے میں غوث اعظم وضو کرتے نظر آ رہے تھے. دیکھو
मुर्दा जिंदा करने पर एतराज हुआ, गौसे आजम ने ठोकर मार के मुर्दे को जिंदा कर दिया और इस अमल से अपने बता दिया। एक जगह हजारों जगह मुरीद है, गौसे पाक हर आदमी की पुरसाने हाल को पहुंच रहे हैं। बता दिया कि देखो मैं गुलामी नबी हूं, एक वक्त में 70 जगह क्या 72 जगह क्या लाखों जगह जा सकता हूं। तो जब नबी के गुलाम का ही आलम है तो इनके इमाम का आलम क्या होगा। मेराज है ना, एक आदमी के दिल में शक आ जाता है, अरे सरकार जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, एक दम में सरे अर्श गए आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कैसे हो सकता है। गया घर, ताजी ताजी मछलियां मिल रही थी, मछलियों को खरीदा, अपनी बीबी के पास गया, कहा मुबारक हो, बिल्कुल ताजी ताजी मछलियां मिली हैं, इसका खट्टा सालन भी बना देना, मीठा सालन भी बना देना, मैं नहा के अभी आता हूं, मैं नहा के आता हूं। गया नहाने, तालाब में डुबकी मारी, निकला बाहर औरत। जब डुबकी मारी मर्द, बाहर निकला औरत, परेशान, क्या किया जाए क्या ना किया जाए। देख रहा है तो जहां डुबकी मारी थी वो तालाब ही नहीं है, वो घाट नहीं है, कपड़े नहीं है, किसी तरह परेशान हो गया। देखा एक राजकुमार वहां से गुजर रहा है, शहजादा गुजर रहा है, उसकी नजर इस पर पड़ी, आशिक हो गया। किसके ऊपर आशिक हो गया। मुनकरे मेराज पर आशिक हो गया। जो खुद आदमी था वो खुद किसी का आशिक बन गया। शहजादे को बहुत पसंद आ गई, उसने उससे शादी कर ली। शादी कर ली, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 12 साल में 12 बच्चे। 12 बच्चे भूल गए सब कहानी। बच्चों की चेचे पेपे से परेशान परेशान है, मुनकरे मेराज है, परेशान है। एक मर्तबा शौहर से इजाजत लेके फिर नहाने गया, नहाने गई। नहाने गई, नहाने गई, डुबकी लगाई, देखा आदमी आदमी परेशान, अरे मेरे तो 12 बच्चे, मैं कहां गया। बाहर निकला, देखा तो वही घाट है जिसमें पहले डुबकी लगाई थी, वही उसके कपड़े रखे हुए हैं, वही उसकी चाबियां रखी हुई है। उठा, उठकर कपड़े पहुंचे पहने, घर पहुंचा, देखता है कि मछलियां अभी भी तड़प रही हैं। सुभान अल्लाह, मछलियां अभी भी तड़प रही हैं। बीबी तो गुस्सा हुआ, क्यों, इतने दिन हो गए तुमने मछलियां नहीं बनाई। कहा कितने दिन हुए, अभी अभी तो डाल के गए हो, अभी आ गए हो। अभी अभी तो डाल के गए हो, अभी लम्हा नहीं गुजरा, आ गए हो। समझ में आ गया कि मैंने मेराज का इनकार किया था। गौसे पाक की विलायत, नजरे विलायत ने मुझको दिखा दिया कि जब मैं अदना सा आदमी होकर गौसे आदम की तवज्जो से इतने 12 साल के अरसे को एक मुद्दत में, एक लम्हे में काट सकता हूं। अरे वो तो खालिक़े कायनात है, उसने जब अपने महबूब को बनाया होगा तो सूरज की रफ्तार रोक दी होगी, चांद की रफ्तार रोक दी होगी, कहकशा की रफ्तार रोक दी होगी, दुनिया के काम रोक दिए होंगे। मुस्तफा को बुला लिया, अरे महबूब आ जाइए, अरे महबूब दीदार कर लीजिए। आज चांद हायल नहीं होगा, आज सूरज अपनी जगह पे स्थिर रहेगा, आज जमीन स्थिर रहेगी, आज लोग जागेंगे नहीं। अरे आपके लिए मेरा दीदार हो जाएगा, दुनिया वालों के लिए लम्हा ना होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरूद पाक पढ़ लीजिए एक मरतबा बुलंद आवाज कर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना नबीना करीमना मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मस्जिद नबी में जलवागर हैं, सिद्दीक़ अकबर बैठे हुए हैं, उमर फारूक बैठे हुए हैं, उस्मान गनी बैठे हुए हैं, मौलाए अली बैठे हुए हैं, सुहैल रूमी बैठे हुए हैं और सहाबा बैठे हुए हैं। हजरत बिलाल हबशी नमाज के लिए खड़े होते हैं, अजान देते हैं। जब सरकार के नाम पर पहुंचते हैं तो सिद्दीक़ अकबर क्या करते हैं, अपने अंगूठे को चूमकर आंखों से लगा लेते हैं।
अपने अंगूठों को चूमकर आंखों से लगा लेते हैं। सरकार तबस्सुम फरमाते हैं, कहते हैं ऐ उमर, तुमने देखा कि मेरे सिद्दीक ने क्या किया? कहा या हबीबी या रसूल अल्लाह, माँ बाप फिदा हो जाए। हाँ देखा। कहा क्या देखा? ये देखा कि आपका जब नाम आया तो हजरत सिद्दीक अकबर ने अंगूठों को चूमकर आंखों से लगा लिया। कहते हैं ऐ अली, तुमने देखा? हजरत अली कहते हैं या हबीबी या रसूल अल्लाह, देखा। कहते हैं उस्मान, तुमने देखा? सरकार ने कहा हाँ देखा। कहा सुन लो, समझ लो, अच्छे से समझ लो कि सिद्दीक की ये सुन्नत, जो अमल करेगा इस पर, यानी मेरे नाम को सुनकर अंगूठों को चूमकर आंखों से लगा लेगा, वो कभी अंधा नहीं होगा। तो ये मुस्तफा का नाम सुनने का मौजूदा है। नाम सुनकर अंगूठों को चूमकर आंखों से लगाने वाला कभी अंधा नहीं होता। तो जिसके नाम का ये आलम है, उसकी जात का आलम क्या होगा? ऐलान होगा महशर में, ऐ मोहम्मद जन्नत में आ जाइए, ऐ मोहम्मद जन्नत में आ जाइए। देखेंगे कि जितने जिसका नाम मोहम्मद मोहम्मद है, सब दाखिल हो रहे हैं, सब दाखिल हो रहे हैं। रोक दिया जाएगा, अरे तुमको नहीं बुला रहा, सुल्तान दो आलम को बुलाया जा रहा है, सरकार दो आलम को बुलाया जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला को रहम आ जाएगा। अरे तुम गुनहगार हो तो हो, मेरे महबूब के नाम से निस्बत रख के तुमने अपना नाम रख लिया है, आओ तुम भी जन्नत में दाखिल हो जाओ। कफनाओ और इज्जत के साथ दफनाओ। कहा मौला ये क्या बात है? वो तो गुनहगार था, उसने कोई नेकी नहीं की, वो गुनाहों में मशगूल रहा। कहा तुम्हें क्या मालूम? सुनो, जब वो बेईमान, वो गुनहगार जब भी तौरात पढ़ा करता था और मेरे मुस्तफा का नाम अहमद उसको देखा करता था, वो अदब से चूमकर आंखों से लगा लिया करता था। मुझको उस बंदे की वो अदा इतनी पसंद आई कि मैंने सारे गुनाहों को मिटाकर उसको जन्नत में दाखिल कर दिया। यह है मुस्तफा का नाम। अल्लाह तबारक व तआला हमको समझने की तौफीक अता फरमाए। देखिए, मैंने कुरान की जिस आयत मुबारका की तिलावत की है, सबसे पहले हमको यह देखना है कि उसका शान नुज़ूल क्या है। किसी आयत की अहमियत को अगर समझना है तो सबसे पहले देखना पड़ता है कि उसका शान नुज़ूल क्या है, किस वक्त वो नाजिल हुई, है ना। देखिए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सी वही नाज़िल होती है? क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। किस वक्त? जब हज में जा रहे हैं, अक्ल परेशान है, क्या मालिको मौला इस वक्त कोई वही नाजिल करना थी तो सफा मरवा की पाकी के बारे में नाजिल करता, हज के अरकान के बारे में नाजिल करता, हज के मसाइल के बारे में नाजिल करता, सफा मरवा की सही के बारे में नाजिल करता, आबे ज़मज़म पीने के आदाब के मामले में नाजिल करता, हजर अस्वद को जब बोसा दिया जाता है तो उसको बोसा देने के आदाब और एहतराम के मुतालिक नाजिल करता है। ऐ मालिकुल मौला, यह हज का जमाना था, तू ने ये मीलाद की आयत क्यों नाजिल की? तुझे हज के मुतालिक कोई आयत नाजिल करना चाहिए था। तुमको मिना में क्या होता है इसके मुतालिक कुछ आयत नाजिल होती, अरफात में क्या होता है इसके मुतालिक कुछ आयत नाजिल होती। ये मीलाद क्यों पढ़ी जा रही है? ये मुस्तफा की पैदाइश का जिक्र क्यों हो रहा है? तो मशीयत जवाब देगी, अरे नादान, अगर हज करने जा रहा है और अज़मत मुस्तफा दिल में नहीं है, मुस्तफा का मीलाद नहीं मानता, तो जा, तेरा हज तेरे मुंह पे मार दिया जाएगा। पहले मुस्तफा का मीलाद पढ़, फिर हज के लिए जा, तेरा हज मकबूल हो जाएगा। लोग एतराज करते हैं कि चलो भाई मीलाद पढ़ो, ये इतना मजमा इकट्ठा करने की जरूरत क्या है? 4-5 हजार का मजमा इकट्ठा करने die जरूरत क्या है? तो देखो, शान नुज़ूल देखो, सुभान अल्लाह कहो। हजरते जिब्रील वही लेकर आए, मुस्तफा को सुनाई। मुस्तफा के साथ कितने सहाबी थे? 1,24,000। 1,24,000 मुस्तफा ने अपनी मीलाद का जिक्र सुना, अपने सहाबा को अपनी मीलाद सुनाई।
अपने सहाबा को अपनी मिलाद सुनाई। एक सहाबी था, दो सहाबी थे, नहीं, मुस्तफा का मजमा कितना था, सहाबियों का मजमा कितना था, 1,24,000 का मजमा था। तो जब मुस्तफा अपनी मिलाद का जिक्र 1,24,000 के मजमे में कर सकते हैं, तो हम गुनहगार मुस्तफा की सुन्नत को अमल करते हुए अगर 5,000 के मजमे में जिक्र मुस्तफा करते हैं तो कौन सी बुरी बात है। अरे ये हमारा काम बिदअत या शिर्क नहीं, सुन्नत इलाही है, सुन्नत मुस्तफा है। सिर्फ वो समझिए, आज शान नुज़ूल से समझ रहे हैं ना। और जो लोग नहीं आते, जो लोग नहीं मनाते, उनको जाने दो। उनके मुताल्लिक भी बताऊं। देखिए, सरकार नबूवत के ऐलान के बाद 11 साल तक मक्के में रहे और आयतें नाजिल हुई, लेकिन ये आयत नाजिल नहीं हुई। मक्के में रहे, काफिरों के दरमियान रहे, ये आयत नाजिल नहीं हुई। क्यों नहीं नाजिल हुई? मशीयत खुदाबंदी देख रही थी कि आने वाले एतराज करेंगे, ये आयत नाजिल नहीं हुई। काफिर लोगों के दरमियान ये आयत नाजिल नहीं हुई। जब मोमिनों का मजमा था, काफिरों के दरमियान मिलाद नहीं पढ़ी गई, मिलाद मुस्तफा का जिक्र नहीं हुआ। जब मोमिनों का मजमा था, जब जाने सारे मुस्तफा का मजमा था, जब मुस्तफा पर अपनी जाने कुर्बान कर देने वालों का मजमा था, जब खुदा की इबादत करने वालों का मजमा था, इश्क मुस्तफा को दिल में बसाने वालों का मजमा था, खुदा ने कहा, अरे जिब्रील जाओ इस वक्त आयत ये सुना दो मुस्तफा को, ताकि कायनात वाले सुन ले कि जब मुस्तफा का मिलाद होता है तो उन्हीं लोगों के दरमियान होता है जो ईमान वाले होते हैं, जो मोमिन होते हैं, जो मुस्तफा के आशिक हुआ करते हैं। हम इश्क करते हैं मुस्तफा से, मिलाद पढ़ते हैं ईमान वालों के दरमियान, बेईमान नहीं आते। जब खुदा ने बेईमानों को मिलाद नहीं सुनाई तो हम क्या सुनाएंगे उनको? हम तो ईमान वालों को सुनाते हैं। रूदे पाक पढ़ लीजिए एक मर्तबा। जिसको देख के हुराने बहश्त भी शर्मा रही होंगी, वो बच्चा पैदा हुआ है। जिसके आगे चांद और सितारे मांद पड़ रहे हैं, वो बच्चा पैदा हुआ है। ऐसा हसीनो जमील बच्चा पैदा हुआ है। ये कौन थी? ये गुलाम थी, बांदी थी। मुस्तफा के आने से पहले अरब में ये रिवाज राइज था कि लोग जानवरों की तरह बेचे जाते थे, जानवरों की तरह उनका बाजार लगता था। एक आदमी अपने गुलाम को पकड़ के लाता था, बेच दिया करता था। लेकिन वाह वाह, महबूबे खुदा, आपने कदम रंजा फरमाए, गुलामी की जंजीरों से छुट्टी दे दी, गुलामी की जंजीरों से छुट्टी दे दी। नमूना देखना है, आओ। अभी मुस्तफा पैदा हुए हैं, सौदी अबू लहब से कहती है कि आपके भाई के घर चांद सा बच्चा पैदा हुआ है। अबू लहब उंगली से इशारा कर देता है, जा आजाद कर दिया, जा आजाद कर दिया। काफिर है, काफिर है। मुस्तफा पैदा हुए, उनकी मिलाद की खुशी में आजाद कर दिया। मुस्तफा ने दिखा दिया, देख मैं इतना पावरफुल हूं कि पैदा हो रहा हूं, गुलामी की जंजीरों से लोगों को छुड़ा रहा हूं, पैदा हो रहा हूं, गुलामी की जंजीरें कट जा रही है। अरे मुझे तुम क्या समझो? और देखो, लोग बयान करते हैं, मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि दो साहबियों ने ख्वाब में देखा कि यही अबू लहब है। इसको ख्वाब में देखा। क्या ख्वाब में देखा? कि जहन्नम के अजाब में गिरफ्तार है, जहन्नम के अजाब में गिरफ्तार है। पूछा तेरा क्या हाल है? कहा हाल बेहाल है, हाल बेहाल है। मैंने क्यों मुस्तफा की अजमत को ना समझा? मैंने उनको क्यों हबीबे खुदा ना समझा? मैंने उनको क्यों अल्लाह का रसूल ना समझा? अब मुझ पर ऐसी मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता। मेरी ज़बान बयान करने से कादिर है। मुझको मुसीबत आलम में गिरफ्तार कर लिया गया है, मुझ पर मुसीबतों के पहाड़ टूटे जा रहे हैं। लेकिन लोगों, तुम भले हो, तुम मुस्तफा की अजमत को समझते हो। आज मैं समझा कि मेरे सारे बदन पर अजाब हो रहा है, मेरी इस उंगली पे अजाब नहीं हो रहा, इस उंगली में रहमत हासिल हो रही है। पूछा क्या हो? कहा जब सरकार पैदा हुए थे
सोबिया ने आके खुशखबरी दी थी तो मैंने इसी उंगली से इशारा कर दिया था, जा तुझको आजाद किया। खुदा को ये अदा इतनी पसंद आई कि बारात के सदके में, मुस्तफा के मीलाद के सदके में मैंने जिस बांदी को जिस उंगली से इशारा करके आजाद कर दिया, वो उंगली मेरे लिए बायस रहमत बन गई। तो मुसलमानों सोचो कि जब काफिर खुशी मना के बांदी को जिस उंगली के जरिए आजाद कर दे तो आजाद नहीं होता। अगर हम सुन्नी तन मन धन लगा के मुस्तफा की मीलाद मना दे तो हमारा जिस्म भी जहन्नम की आग से आजाद हो जाएगा, रहमत खुदावंदी में गर्क हो जाएगा। चाँद से खूब तर है रुख़ मुस्तफा, उनको